بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما تعلمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن رسول هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون لها اليوم ما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاتبعوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستقاموا فلا يرجعون ومن عمره نكسه في القلب أفلا يعقلون وما علمناه شيئا وما ينبغي له إلا نتلو قرآنا مبينا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون فضل الله لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا نسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ينشأها ولم نتنوها بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما النور منهما الشيطان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان وإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يتكلم به إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالناصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش
जो करबला में 72 का मौत का देख सकोगे तनवसा का मौत का
من نبي رحمة للعالمين بالقاسم محمد وعلى والد النبيين حاكم يوم الدين رئيس العارفين سيد الوسيلين قائد الروم المحجلين قاتل الكفار والمشركين قاتلنا بالدينا والقاسمين بالداخل الداخلين احسناه في إمام مبين الشجاع العظم والقاسمة الله الخير بدعان الأعمال وأن الأدوار التي لا يدري من عمل لنا فاغفر الله القائمة وإن الله الداعية وإن الله الناظرة وحجة الله البالغة الإمام المفتاح إمام المشارق والمغارب مصدر الرجائب مصدر الغرائب الذي عمره ولم القادر للغائب فبالله الغالب غالب على كل غالب مولانا ومولى الكونين علي بن ابي واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين الذين ارتضى الله لهم الرزق والأخبار تأكيدا وبارك الله لنا أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المقدس المبارك وفي الحياة الدنيا من الآخرة وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل इशारे जनाब गरीब कलाम हक में और एक हैरत में डालने वाले सवाल की सूरत में है कि क्या तुम हयात दुनिया पर राज़ी हो गए। हालांकि मताए हयात दुनिया आखिरत के हासिल में बहुत अजीब थे। इस इरशाद मुबारक में फरमाया गया वो इसलिए ज़्यादा काबिल गौर है और ये भी कि इससे वो नतीजे तालीमा के मज़मून की रोशनी में किए जाएंगे कि जिससे मंशाए मशीयत इंसान दुनिया में रखते हुए इस दुनिया के लिए सब कुछ लगाए, इस दुनिया के वास्ते अपने आप को अपना करें, बल्कि इसके पेश नज़र हमेशा आखिरत रहे। ये होता है इसमें जब ये इरशाद फरमाया गया कि दुनिया पर वाक़ई हो गए। हालांकि जो कुछ के हयात दुनिया से हासिल होता है मताए हयात दुनिया है तो आखिरत में कुछ भी नहीं। बात तो ये तमाम हुई, लेकिन ये है कि फिर जब दुनिया ये थी और ये है कि मताए दुनिया कुछ भी नहीं है तो आखिरत क्या है, वो क्या है कि इसकी कीमत और इसकी कदर आखिरत में हो। ये तो सवाल जैसे पैदा होगा। अब ये मौजूद के काबिल कुछ सफियाना है कि ये जो दुनिया है, इस दुनिया में इंसान है, पहले इस पर भी गौर करना जरूरी हो जाता है और फिर दुनिया के मफ़हूम के एतबार से दुनिया एक किस्म के कई जातियों से देखा जाता है। तो बात दुनिया बहुत
बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है और विवादित नजर आते हैं। जो लोग खुद इंसानी इस तरह आगे बढ़ रहा है और उसी के सहारे दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसे देखते हुए ये समझते हैं और समझना चाहिए और समझ में आएगी ये बात कि दुनिया बहुत बड़ी होती जा रही है, बहुत बड़ी होती जा रही है। लेकिन ये कि ये जो दुनिया है ये जाहिर है कि इंसान के लिए जिंदगी में आलम के दौरान में अगर कुछ सहूलतों का बाहिर करती है तो ठीक है, बात है इंसान लेकिन उससे कोई सजा मिलने वाली नहीं। अगर तरक्की करता हुआ इंसान और बर्बाद करके हादसों को कम कर रहा है और इस तरक्की के लिए इससे भी अलग तरक्की और फिर हो जाए और जब साथ रखते हैं तो उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करके सबसे अच्छा है। अगर उसका कोई सजा नहीं तो बात नहीं करने वाला के जो इसलिए ज़्यादा वक्त दरकार हो जाता है इसके लिए कोई हुकूमत नहीं है, कोई उसके लिए बात नहीं। मगर एक सूरत हासिल हो जाती है जायज़ तरीके पर तो ठीक है। ऐसी तमाम सूरतें जो इंसानों के दरमियान पैदा की है उसके सबब से दुनिया बहुत बड़ी मालूम होने लगी है तो बड़ी वसीर समझी जाती है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी दुनिया में रहता हुआ ये इंसान अपने आप को खुद इसका मुख्तार और मालिक नहीं समझ सकता, पर वो हक नहीं रख सकता कि जो बनाने वाले का ये कि सब कुछ होगा, इससे भी ज़्यादा अजीब चीज़ें होंगी। अभी आप तारीख के दौर से गुजर रहे हैं, हालिया तारीख के दौर से गुज़िश्ता अगर आप 100 बरस की भी तारीख ले लें और कुछ बात की भी तो मिलेगा कि भाई इलेक्ट्रिसिटी आई और फिर ये आवाज़ें आई, फिर ये की जा रही आवाज़ों पर आवाज़ के लिए जो है फराहम हुई और तरक्की की इंसान ने तो टेलीविजन के जरिए से नामुमकिन हो गया और उस पर उससे ज़्यादा जो अहम दौर चल रहा है ये कंप्यूटर का दौर है जिसमें नेटवर्क ने तो दुनिया की खुद को हैरान कर दिया है और इससे भी बात आगे बढ़ रही है, बढ़ने वाली है। इंसान ने ऐसा इंसान बनाने की कोशिश भी कर रहा है, ये मौका नहीं है। ये भी तरक्की है, बड़ी तरक्की है, सब कुछ है। मगर सवाल ये है कि इतनी तमाम चीज़ों के बावजूद और फिर ये तमाम जितनी तरक्कियाँ हुई हैं उनमें जितनी चीज़ें हर होती हैं, क्या तुमने उनमें से किसी एक ज़र्रे को भी खल्क़ किया है? क्या तुम उसके खालिक हो? तो ज़ाहिर तो यही कहा जाएगा कि इंसान ने बनाया है उसे, इसलिए निस्बतन ये किसी को खल्क़ कर रहा है चीज़ों को। लेकिन फिर उसमें जो अजरा साबित होते हैं, क्या तुमने उसे खल्क़ किया है? इन चीज़ों से सब चीज़ें बनी हैं, क्या तुम उसके खालिक हो? तो नहीं, इंसान किसी एक ज़र्रे का खालिक भी नहीं है। फिर ये चीज़ें तुम्हारी कैसे हुई? इस पर तुम फख्र कैसे कर सकते हो? इस पर तुम्हारा इख्तियार क्या है? खुद तुम पर तुम्हारा इख्तियार क्या है? तो इंसान अजीब मखलूक है कि मालिक तो किसी चीज़ का नहीं, खालिक तो किसी चीज़ का नहीं है। मालिक हर चीज़ के होने का दावा करता है, आप तो कुछ नहीं कर सकता, मगर मिल्क अपनी है ये बताने का बड़ा शौक है। इसी के नतीजे में
शादियों की सूरत में कि वो तलब जा करता है, मुल्क की ख्वाहिश करता है, इक़्तिदार की ख्वाहिश करता है, अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है, जो बहुत दुनिया होती हैं। ये सब बातें जब शामिल हो गई तो ये पूरी दुनिया के जो उसके लिए आराम, आसाइश और सहूलतों और फरावानियों की दुनिया थी, और जैसा मैंने अर्ज़ किया सहूलतें इंसानी ज़िंदगी में जायज़ तौर से मिल जाएँ वो उसमें ज़रूरी तौर पर शामिल हैं। इन सब चीज़ों के होने के बावजूद भी पूरी दुनिया के अंदर इंसान तमाम चीज़ों को बनाने के बाद इस दुनिया में रखते हुए इंसान खुद जो कल्ब में मकाम फ़ख्र पर है इंसान नहीं रह सका। चीज़ें तो बन गई, बनाने वाले ने बड़ा कमाल बताया कि मैंने ये बनाया, लेकिन तुम्हारा जौहर तो था इंसानियत और तुम उसे जब खो बैठे तो आज वही तमाम चीज़ें पूरी दुनिया के इंसानों के लिए इंतशार का बाइस बन गई, इसलिए कि तुमने इसी दुनिया को सब कुछ समझा, इसी दुनिया को हासिल समझा, इसी को मसाए जिंदगी समझा। और जब ऐसा हुआ आजाद का टकराव हुआ, अवध का टकराव हुआ, किरदार का टकराव हुआ, नतीजा ये निकला कि इंसानी औसाफ बस मकाम पर आ गए कि दुनिया तो बहुत बड़ी हो गई, इंसान बहुत छोटा हो गया, इंसान बहुत कम हो गया। और मशीयत ने ये नहीं चाहा, मंशाए मशीयत ये तो आखिर कुछ भी नहीं है, अगर है तो साथ ले जाओ, बना के रखे हो ले जाओ, मालिक हो नहीं हो सकता। तुम जाओगे और बना हो जाओगे, लेकिन तुम के मालिक हो सकते हो ना किया। फिर ये मसला कि ये दुनिया तो है, लेकिन एक दुनिया उस इंसान के अंदर आबाद है, उसके वजूद में, और वो दुनिया अफ़ग़ानिस्तान की दुनिया है, लेकिन आपका जवाब है उसमें गैर भी है, बात है, और सभी तौर पर फर्जी तौर पर चीज़ें हैं। दुहाई जो निज़ाम बदल का है, उसके ताल्लुक से जो वजारतें हैं, तथा ये सनत ये जो होना इंसान है, इंसान के में जो चीज़ें पाई जाती हैं, हाजिमा कैसे होता है, बड़ा खून कैसे होता है, ग्रहों की खुशियात क्या है, आकाश क्या है, ये ज़ाहिरी किस्म की बात है। ऐसी ये इंसान को फसल का वजूद, उसमें जो अल्लाही है उसका जवाब इंसान नहीं ला सकता। कोशिश कर रहा इतनी पूरी बड़ी दुनिया तो उसने बना ली, लेकिन मशीयत ने जो खुद इंसान को बनाया तो उसके अंदर वो खुद बड़ी दुनिया आबाद है, जिसका जवाब कोई नहीं ला सकता। तो ये सिर्फ खल्क़ की दुनिया है, यानी जिस्मानी दुनिया है। फिर उसके अंदर वो दुनिया है कि जो सिफात की, किरदार की, औसाफ की, जिस्मानी होने की, और उसके अंदर फिक्र की, हिकमत दानिश की, ऐसा बदलने की दुनिया है। मशीयत ने ये चाहा कि ये दुनिया बड़ी हो जाए, ये दुनिया बड़ी से बड़ी हो जाए। और जब ये रास्ता मुतय्यन हुआ कि असल में ये दो दुनियाएं, एक दुनिया है जो बाहर की दुनिया है, दूसरी दुनिया है जो इंसान के अंदर की दुनिया है। ये मौजूद अगर मुमकिन हो तो अशरे में तमाम मकान अली इंसान के अनुमान से बयान किया जा सकता है, बशर्ते के दिमाग और फिक्र कबूल भी करें और उसके हक को अदा किया जा सके। मैंने जो नाम दे दिया दरमियान में आ गया, नाम तो आना ही था जब मशीयत ने ये चाहा कि इतना
इंसान बड़ा बने, ये सारी दुनिया के मुकाबले में भी जो कुछ इसके अंदर वो सबसे बड़ा हो जाए, तो बात सबसे बड़ी बात हो जाए। उसके मुकाबले में दुनिया बहुत छोटी हो जाए, है ही छोटी, इसलिए कि बनाया तो तुमने ना, तुम तो बड़े हुए इसलिए कि तुमने बनाया। लेकिन ये बड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं होती कि इंसान कोई चीज बना ले, बल्कि इसलिए होती है कि जब कोई चीज इंसान बनाए तो उसे खैर के लिए साबित करे, बेहतरी के लिए साबित करे। तो उसके लिए वो दुनिया, वो कायनात हमारे अंदर मौजूद है, जो नफ्स के उन्मान से है। जब उसकी तरक्की का मौका आएगा, उसके इर्तिफा का मौका आएगा, तो तुमको मालूम होगा कि वजूद में पाए जाने वाला नफ्स कितना कीमती होता है। गुफ्तगू मखलूक की है, सिर्फ इंसान से और इंसान से नहीं है, बल्कि गुफ्तगू ये है कि अल्लाह ने जिन अनवार को भी बनाया, जैसे जैसे मखलूक़ात को बनाया, जैसे इतिहास को बयान किया, वो हमारे लिए ही हम सोचें कि कितना इंसान कोई वजूद इतना बुलंद होता। और जैसा मैंने किया कि अंदर की दुनिया नफ्स की दुनिया और साथ की दुनिया, ये जात की दुनिया, ये अंदर की दुनिया, ये गैर पर चलते हुए अगर बुलंद होती जाए तो कहाँ तक जा सकती है, वो तो हमारे लिए दर्श है। लेकिन ये बताने के लिए कि तुम समझ सको कि नफ्स कहाँ तक पहुंचा जा सकता है, इसे मैं अपने हाथ मुंह से बनाऊं और उसके नफ्स की कीमत का तुम अंदाजा करो, तो तुम भी कुछ से तवक्कुल करके अपने नफ्स को बुलंद कर लोगे। तो अंदाजा करो कि बंदों में एक बंदा ऐसा भी है कि जब अपना नफ्स देकर मर्ज़ी माबूद खरीद लेता है। ये वजूद के अंदर की दुनिया है, लेकिन ये मेरा वजूद नहीं है, ये वजूद मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अगर इसकी कीमत रज़ाए माबूद है तो रज़ा वहां तरफ है, से तो कोई खाली है ही नहीं। जब पूरी रज़ा सिमट के आ गई तो आलम इम्कान की क्या हकीकत है, उसके मुताबिक कौन बड़ा? मौलाए कायनात को देखने वाले जब उनके सामने मुबारक को देखते थे तो मुबारक को देखते थे, अपने पैकर में खड़ा अपने सामने देखते थे और यही है। तो उनको क्या मालूम कि उनके पास दुनिया है वो तुम्हारी दुनिया नहीं है, तुम्हारी नपाया दुनिया नहीं है, बल्कि उनका सब कुछ तो खुदा का है। इसलिए कि सारी बातें तो नफ्स में है और नफ्स की कीमत मर्ज़ी माबूद है। अब अगर कोई उनसे मुतमस्सिक होकर ये चाहे कि इस दुनिया से आगे बढ़ जाए, यहाँ तक के दुनिया में रहते हुए दुनिया से बाहर हो जाए, ऐसा बता रही है, तो फिर उसे रज़ाए माबूद को हासिल करना पड़ेगा। और उस रज़ाए माबूद को हासिल करने के लिए आस्ताने इल्म मौलाए कायनात पर हाज़िरी लाज़िम होगी कि इल्म मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन क़याम और दलील की जिम्मेदारी इन पर यही था जिसका जश्न आप मनाते रहे, इसकी तारीखें गुजरी हैं कि क्यों कहा कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, इसलिए कि सब कुछ पहुंचाने के बाद अगर दलील फराहम न होगी तो कुछ भी नहीं पहुंचना। ये फिक्र का मकाम मौलाए से मौलाए कायनात कोई मोहब्बत का जज्बा नहीं था जिसका हिसाब उन्होंने कर दिया, बल्कि ये बताया कि मैंने तो सब कुछ दे दिया है, देना था, लेकिन तुम यकीन तक तो पहुंचो। यकीन तक पहुंचने के लिए दलील जरूरी है। दलील के लिए जरूरी है कि इंसान का दिल कबूल करे
अब जिम्मेदारी दे के जा रहा हूँ कि उसे मौला बना रहा हूँ कि जो जाहिर में अपने कमालात दिखा कर भी दलील देगा, अपने इल्म से भी ऐसी दलील देगा कि तुम रद्द न कर सकोगे। इसलिए अली के बेशुमार सिफात में ये भी सिफत है कि ज़ाते मौला कायनात वजूद खुदा पर सबसे बड़ी दलील है। आज तक भी इतने इंसान किसी रास्ते से आए और आगे तलाश करना चाहे कि वजूद खुदा की दलील क्या है, तो यही खाना है इस्लामिया का नाम एक है, अनवार 14 है, मगर उनके वजूद के बाद मसला यही था। इसलिए इस वलायत का ऐलान करके मौलाए कायनात को इल्तिजा दिलाया कि ये ज्ञान अता करना, चीज़ें को बाकी रखना, ये जिम्मेदारी क्या है। इसलिए इतनी अहमियत के साथ मशीयत ने बयान किया कि मेरा पहुँचाया गया पहुँचा है। अब एक की बात के लिए जरूरत है कि ये सब कुछ क्या है। मैंने कहा कि दुनिया ने आयत के अल्फाज तुमने हयात दुनिया पर पाबंदी किया कर दी, हालांकि मसाइल दुनिया कुछ भी नहीं है। आखिरत के मुकाबले में तो आखिरत क्या सवाल पैदा हुआ। अब जाहिर है कि इस तरह से मौलाए कायनात की तस्वीर है तो तस्वीर से रहेगी, तो उसमें तमाम पहलू हैं लायक हैं, बल्कि तो लोग समझते हैं कि ये दीनों की शरह है, किताब की शरह है, ये इस्लाम की तस्वीर है। और फिर अगर फिक्र तरक्की करे तो जो अर्थात और मूल होते हैं उसे जो लोग जानना चाहें उनके लिए अली ने चराग जलाया है कि हमेशा रोशन रहे, और चराग रोशन है। आज की रोशनी से दूसरे लोग अपने अपने रास्तों से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आलम इस्लामी महसूस रहा है कि अगर के इरशादात को इस ताबीर से देखा जाता कि ये क़यामत तौहीद व नबूवत के लिए है, ये दीन की बुनियादों के लिए है, तो उनके लिए मसला आसानी हो जाता है। इसलिए कि कलाम तो मुश्किल कुशा का था, जब वो कलाम नहीं करेगा तो मुश्किलों को हल करने के लिए करेगा, फिक्र उधर नहीं। असल बात क्या है कि मौला ने मुकाम पर इरशाद फरमाया कि जैसे कि इंसान के जिस्म की कुछ हालतें होती हैं वैसे ही रूह की भी हालतें होती हैं, ये फरमाया है। ये आपने इरशाद सुना भी होगा और जो मैं अपने बयान में दोहरा रहा हूँ कि ये फरमाया कि इंसान जिंदा है या होता है, सेहतमंद है या बीमार है, जाग रहा है या सो रहा है, ये कैफियत इंसानी जाहिर वजूद की कैफियत जिस्म। तो फरमाया कि यही कैफियत रूह के लिए है, हम जिंदा है या मुर्दा है, सेहतमंद है या बीमार है, जाग रहा है सो रहा है। तो फरमाया कि रूह की जिंदगी इल्म है और रूह की मौत जहालत है, रूह की सेहत यकीन है, रूह की बीमारी शक है। रूह का बेदाग रहना, मुतनब्बिह रहना है, यानी बाखबर रहना है, हर चीज से खबर रखते हुए इख्तियार करना है। इसके तीन चीजें हैं कि जरा रहे और अगर हट गए तो फिर नींद है वो गफलत है, रूह की गफलत है कि तुमने इन तमाम चीजों की जाने का अवसर है। इंसान रात जाग जाग के क्या क्या हासिल कर पाए करता रहे, लेकिन अगर उसने अपने नफ्स की बेहतरी की जाने तवज्जो नहीं की तो गफलत का शिकार हो गया। दलील क्या है कि पहले मौके पर कहा जाए जिसमें इंसान की 6 हालतें हैं, उसमें इंसान
क्या जिंदा है या मुर्दा है। अगर जिंदा है तो सवाल पैदा होगा कि भाई सेहतमंद बहुत अच्छा है, और फिर अगर सेहत के साथ तवज्जो भी अपनी जानी को अपनी बेहतरी जाने तो और अच्छा है, ये सवाल पैदा होंगे। लेकिन पहली ही मंजिल पर अगर ये मालूम हो गया कि जिंदा है या मुर्दा है, तो जिंदा नहीं है मुर्दा है, तो मुर्दे के लिए क्या पता जाएगा सेहतमंद है या बीमार है, सो रहा है जाग रहा है, कि मुर्दे के लिए पूछाया जाए। तो पहली ही मंजिल पर चौका किया गया है और बहुत बड़ा दरवाजा हमारे मुल्क का खोल दिया गया, ये कहकर के रूह की जिंदगी इल्म है। अब अगर इल्म नहीं है तो रूह मुर्दा है, अगर रूह मुर्दा है तो मुर्दे के लिए क्या सवाल कि यकीन है या शक है, गफलत है या बेदारी है। इसलिए पहली मंजिल पर जब इल्म को इतनी अहमियत दी गई तो फिर इल्म के बारे में जो बयान किया गया उसकी बड़ी तफसील होगी। मगर इल्म इंसान को बहैसियत इंसान बरकरार रखते हुए अगर जिंदगी का सबूत दे रहा है तो फिर उसके बाद यकीन भी है जो सेहत है, उसके बाद बेदारी भी है जो इंसान को उसके अज़ाइम पर कायम रखने की नेकी को जानते सब कुछ होगा। लेकिन अगर इल्म नहीं होगा तो फिर जिंदगी ही नहीं होगी। इसलिए बार बार मौलाए कायनात ने इल्म की जानिब को तवज्जो फरमाया है। इल्म को नूर कहा, इल्म नूरुल कहा, इल्म नूर है और नूर का काम यह है कि वो तारीकी को दूर कर देता है, हर चीज को वादा कर देता है। वादा इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। अब वही लोग थे कि जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा इसी रास्ते से इनके दर से इल्म को हासिल करके जब जिंदगी को मजबूत कर दिया, इनसे हासिल किया तो जिंदगी बढ़ती जा रही है। जैसे आपकी जाहिर जिंदगी आप अच्छा रखना चाहें तो जाहिर इस्तेमाल करें, एहतियात करें और तमाम निज़ाम अमल और अमल करें तो आपकी जिंदगी ज्यादा भी हो, अच्छी भी हो। तो वैसे ही इल्म है, तो उन्होंने मौला के दर पर हाजिर होकर बस यही चाहा कि बेहतर से बेहतर जब इल्म उनको हासिल होता जाए तो तरीक़ी से मिलने वाला है तो उनकी वो रूहानी जिंदगी मजबूत होती चली गई। अब वो जिंदा रहेंगे, जब जिंदा रहेंगे तो सफर हयात तो यह जवान होने वाला है। तो वो जो फरमाया कि ये बताए दुनिया के पीछे जो फिरते रहे इल्म हासिल करके अपने इल्म से तुम आपस में जो टकराते रहे जज्बात में, एहसासात में, हवस में, तमन्नाओं में, आरज़ुओं में जो गिरते रहे, अगर इल्म हासिल करके तुम यकीन की जानिब आगे बढ़ते तो मौत के बाद भी तुम्हारे लिए जिंदगी रहती, क्योंकि रूह जिंदा है। इल्म रूह के साथ है और रूह जिंदा है तो जिंदा। इसीलिए इस जिंदगी का यकीन कैसे मिला कि जिन लोगों ने ये बात हासिल कर, क्योंकि उसी के साथ यकीन भी था और उसके नफ्स में जज्बा मोहब्बत का भी है, जिनसे चाहते हैं उसे कहे मान ले, जो मोहब्बत करते हैं। तो ये मैं दलील दे रहा हूं आपकी खिदमत में कि ये कैसी जिंदगी का यकीन है। ये देखिए ये कहा गया ना आयत से मखलूक हुआ कि भाई हाथ दुनिया है, बताया हयात दुनिया है, मगर आखिरत का कुछ नहीं है। आखिरत है, आखिरत में सब कुछ होगा, मगर यकीन तो हासिल करो, कायम तो रखो, ईमान में गैब तो रखो। तो सज्जाद के जमाने में जब खंबा लाए गए सामने और दोस्तान अली को ढूंढ ढूंढ के दबा किया जा रहा था, तो उस वक्त खंबा लाए गए तो शहीद हो गए थे, काफी एक देहात मिला के थे और उस वक्त उनको जब हाजिर किया गया कि हाथ गुलाम है तो तारीफ ने उसका मसला बयान किया है कि बल्कि भी स्पीड हो गई थी। तो कहा उनको हुक्म दिया गया, मालूदा ये कहा गया कि तुम शरीर की बुलाई दो, सुनना चाहता हूँ। उन्होंने मजा शुरू कर दी, अकेला पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसको और गुस्सा आया, मैं कहता हूँ बुलाई करो, सही रहे तो तुम यही सिलसिला जारी रखोगे तो मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। अब वो क्या कह रहा है, ये दुनिया को सब कुछ समझ के कह रहा है, ये मता है दुनिया है,
तेरे पास आज तक तू ये कर सकता है, यही दुनिया है, क्या तुम्हें खत्म करवा सकता? उसके बाद उसकी मौत आ गई। नजरियाती तौर पर एक तो दानिश के रास्ते में देखें तो वो मर चुका था, मतलब ऐसा देखने की जरूरत नहीं। उसके बाद ने क्या बताई कि उसने पूछा कि तुम खुद बताओ कि तुम्हें कैसे खत्म करूं, तुम बताओ कि मैं तुम्हें कैसे खत्म करूं। तो खत्म होने के बाद क्या है? दुनिया है, दुनिया खत्म हो गई, दुनिया में खत्म, मता है दुनिया में खत्म। मगर उन्होंने बताया कि नहीं, हमारी जिंदगी तो आखिरत है, हयात तो आखिरत है, दुनिया तो कुछ भी नहीं है। आज तलवार तो खत्म करेगा, कब तो खत्म हो जाएगा, तो मारा जाएगा, इस तरह खत्म हो जाएगा। अब कैसे तुम्हें खत्म करो? तो मुकम्मल यकीन के साथ कहा कि आखिरत में जैसा तू मेरे हाथ से खत्म होना चाहता है मैं क्या। तो जनाब अकबर का ये जवाब खुद एक ऐसी तलवार कि जिसने दुनिया और माताए दुनिया दोनों को काट दिया। कहा तो इन सब चीजों को जमा करने के बाद समझता है कि ये दुनिया जमा की है, ये बताए दुनिया है तो कुछ भी नहीं। जो कुछ है, जो रहने वाला है, जो जिंदगी है, दुनिया और बताए दुनिया सिर्फ बताए दुनिया के लिए मौत है। अजीब टकरा होता है कि छोटी भी हो गई है, बड़ी भी हो गई है, आप उसी में रहिए। अगर आप उसी को दुनिया समझ रहे हैं, अच्छी दुनिया समझ रहे हैं तो रहिए, जब तक आप में रहेंगे जब तक दुनिया है। लेकिन उन्होंने क्या कहा? हमारे साथ हो जाओ तो मनमा का वादा जब हमारे साथ रहोगे तो फिर मौत क्या है? दुनिया और बताए दुनिया को खत्म कर देगी, नफी हो जाएगी। हमारे साथ रहोगे तो मौत ही तुम्हें मार नहीं सकती, वो जिंदा रखेगी। इसलिए ये जिंदगी और मौत के सामने हम हैं, अल्लाह तरफ से नाफिज करने वाले हम हैं। इस तरह वो मकाम आता है कि जहाँ मोमिन जेरे बैठाए उसकी जिंदगी क्या है, क्या है। तो ये मेयारात बनते हैं कि वो जिंदगी में भी जिंदगी घर का नाम लेता है, इसी घर का नाम लेता है, इसी से वाबस्ता रहता है और इसी के भरोसा करता है कि मैं जिंदा रहूंगा। ये मजलिस नबी मरहूम के लिए है, जिससे यहाँ से लोग अपनी वाकिफ होंगे। बड़े मौलाई आदमी थे और बड़ा जज्बा उन्हें हुसैन का रखते थे लोग, और मजलिस के लिए मातम के लिए तो मुसलसल उनकी तमन्ना रही कि हो एहतमाम हो। और कोई टाइम पर इमाम ज़माना फरमाना के रात दिन है तो बुनियाद रखती मजालिस के वहाँ पे की और गुलामा के नाम से जारी है। और अब अलाए भी मजालिस हैं कि अपने मजालिस हैं खुदाए जाफरी के यही बता है। तो अब फिर इसी वजह से दोस्तों वो बहुत चाहने वाले भी थे, लोग भी उन्हें चाहते थे, वो भी उन्हें ऐसे बहुत चाहते थे, और जिसकी जो उनके नाम हो सके वो रहना जैसे हो सके करते थे। तो बड़े अवसाद होते थे और ये सब के साथ बड़ा रफ था। तो ये बात खाली नहीं जाती, मशीयत की सजा देती है। मेरी नजर में और सजाएं उनको मिली होंगी, लेकिन ये कि ये वजूद की सजा का हिस्सा है कि उनके फजल मौलाना अब्बास जो मजालिस पढ़ रहे हैं मुसलसल गुज़िश्ता चंद वर्षों से, उसमें मुसलसल वो आगे बढ़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके पर जिक्र कर रहे हैं और आगे बढ़ेंगे वो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ज़ाकिर का मतलब ये है कि वो है कि जब हुसैन का जिक्र करे और लोगों को बुला दे, वही ज़ाकिर है, बाकी से बहुत करीब होगी। तो इसकी जजा ये ज़ाकिर जब मस्जिद पढ़ रहे हैं उनके फजल, इसकी जजा भी उनके हिस्से में है। ये मशीयत औलाद की आमाद हैं सारे
तरफ मिल जाए तो उनके लिए तो बहुत कुछ कहा जाना था, बड़ी वहां की रही रात से। मगर मैं ये बराबर देखता रहा कि हुसैनियत के लिए एक दिल था, हुसैन के गम के लिए एक दिल था, जो बराबर उनके दिल में रहता था कि इस मौके पर मंजिल से फला मकाम पर जाए, मस्जिद करें। ये भी साथ बंगाले की चले गए कि वहाँ जाएं और वहाँ मस्जिद करें, और वहाँ पर जाएं तो वहाँ मस्जिद करें। तो इस तरह हुसैन के गम से बड़ी आदतगी उसको रही है। तो यही सबब है कि जिसकी वजह से सभी लोग जमा हुए, गुस्सा भी मिला, नशिशें भी हुई और ये मजलिस भी हो रही है। लेकिन ये भाई वो करबला वाले के बाद शहादत ये आलम हुआ के लाशे मैदान में रखे थे, बीवियां ये बनात रखी, कोई गुस्सा देने वाला कैसे होता, लगाए जा रहे थे, विदाएं दी जा रही थी। आगे बढ़ा और फिर हाफिले की मेहमान ज़ैनब हुई, इमाम ज़ैनब मेरी हैं जो हैरान है, मगर जनाब ज़ैनब का कारनामा है खलीफतुल हुसैन है। इसलिए हुसैन ने तौहीद को बचाया और हुसैन की फतह को ज़ैनब ने समझाया। मगर किस तरह के कूफे में दाखिला हुआ, जहाँ कभी वो कि औरतें बगैर इज़्ज़त के नहीं आ सकती थी, वहाँ लोग कह रहे थे असील लाए गए, कैसी लाए गए। जाम के दरबार में दाखिला हुआ, जहाँ हुसैन का सर मस्जिद में रखा था, ज़ैनब वहाँ बयान कर रही थी, ज़ैनब कामयाबी का ऐलान कर रही थी, दरबार में सकता था, अपने आजिज़ थी, कोई इंसाफ नहीं कर सकता था। यजीद समझ नहीं सकता था कि ज़ैनब को कैसे रोका जाए, तो उसने ऐसा जुल्म किया नहीं आ सकी। उसके बाद
टाइम पर क्या क्या याद आया होगा, क्या सवारी थी। अब्बास जान तय करते थे, अली अकबर महल का खर्चा उठाते थे, हुसैन हाजिर थामते थे, जवाना ने मेरी हाजिर निगरानी करते थे। मगर अब कुछ नहीं था, गुर्बत का आलम था। एक बात कहना है और जिक्र को तमाम कर देना है कि जब ज़ैनब अब तक गई होंगी हुसैन के, तो उस वक्त वो मंजर याद आया होगा जब आशूर का दिन ढल रहा था और मरकज तक नहीं, लाशें तक गई थी। तो लाशा निगाहों में आया होगा कि जिन पर सर नहीं है, हुसैन वो से नहाए हुए हैं। और एक मरतबा एक ने कहा, क्या यही मेरा भाई है? आसमान की तरफ देख कर कहा, "मारे इलाहा, ये तेरा हुसैन है, ये तेरा हुसैन है।" और एक तरफ फातिमा तरफ रही थी, परवरदिगारा, आज के लिए भाला था कि मेरा हुसैन खून में नहाए। और तमाम खानदान खासतौर पे या पास में करते हैं और उनके भाई हैं और बहनें हैं तमाम। तो परवरदिगार आलम हम सबको हमें अल्लाह के फैज़ में सब्र जमील अता फरमाए।